Good morning, students. Warmly welcome to English online class. Student, this is the picture of Zulfikar Ghosh, who was the famous novelist, poet, and essayist, who wrote the poem Geography Lesson, which is prescribed in your poem. So, students, it is necessary to know about Zulfikar Ghosh. In short, students, he was born on 13th March 1935. His age is now 85, or he was born at the place Sialkot, Punjab in India, which was the part of India before independence. Then he went to Pakistan, or now he settled in USA. Since as a occupation he was a novelist, he was a poet, or he was not only a poet but also he was a famous and essayist. He got his education from Keele University in England, from where he got PA. Okay, students. Now I am going to tell the summary of the poem Geography Lesson. Student, this poem has been divided into three stanzas, or each stanza consists of 8 lines without any rhyme scheme. So, students, let's know the pair of phrase of each stanzas. So let's start now. The city from the sky. Students, the poet is in his jet or in his plane, or from the window of his plane, from the different level, or from the different height above the ground, he observes the earth. So how the city look like from the sky, let's know through the first stanza. In this, in the first stanza of the poem, the poet describes his city. He tells us how it appears from the window of an aeroplane. It is clear that the city developed just as it was necessary for people. So what looked absurd on ground looked inevitable. Inevitable means अनिवार्य, या किसी को काम को करना अनिवार्य हो या ऊपर से दिख गए हो. ओके स्टूडेंट्स, जुल्फिकार घोष अपने जेट में और आसमान से अपने जेट यानी प्लेन की खिड़की में से देखता है और उसी का वर्णन करता है जैसा कि शहर उसको दिखाई देता है. स्टूडेंट्स, इस पोएम के फर्स्ट स्टैंजा में वो शहर का ही वर्णन करता है और वो हमें बताता है कि उसकी प्लेन की खिड़की में से शहर कैसा दिखता है, और ये इससे क्लियर हो जाता है उसे ऊपर से देखने पर कि शहर इस तरह से बसे थे. वो अपनी आवश्यकताओं के अनुसार बसे थे, यानी उनको बसाने से पहले कोई स्टाइल या कोई डिज़ाइन या कोई प्लानिंग नहीं बनाई गई थी बच्चों. हब्जर्ड का अर्थ है विदाउट प्लानिंग और डिसऑर्डर, यानी बिना प्लान के, बिना योजना के और बिना क्रम के बनाए हुए घर थे. वो लोगों की ज़रूरत के अनुसार ही बसाए गए थे, लेकिन उनको बसाने से पहले कोई प्लानिंग नहीं बनाई गई थी. मगर ये सारा का सारा आसमान से बिल्कुल साफ दिखाई दे जाता था उसे कि जो घर जो बसे थे वो लोगों की आवश्यकताओं के अनुसार बसे थे, न कि बसाने से पहले कोई डिजाइन तैयार की गई. नाउ इन द नेक्स्ट इन द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी. ज्योग्राफी का लॉजिक देखते हैं. नाउ द प्लेन राइजेस टू ए हाइट ऑफ 10,000 feet. The poet can see the logic of geography. He can see why the cities in the country have grown along the river. The valleys are populated for the same reason. It is land and water together that attracts the people. बच्चों, उसके बाद में उसका जो जेट या जो प्लेन है वो भूमि से 10,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ता है. पोइट वहाँ से एक ज्योग्राफी की लॉजिक को देखता है. वह देखता है कि देश में बहुत सारे शहर थे जो नदियों के किनारे बसे हुए थे. घाटियों में भी बहुत सारे लोग रहते थे, यानी जनसंख्या थी, पॉपुलेटेड. इसका रीज़न ये था कि वहाँ पानी की सुविधा थी. भूमि और पानी हमेशा व्यक्ति को आकर्षित करते थे,
ये लोगों की पानी जो है वो लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता था। इसी से वो खेती करते थे और खेती करने के बाद में यहीं से अपने अनाज को ट्रांसपोर्टिंग किया करते थे और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। तो ये 10,000 फीट की ऊंचाई से उसे एक ज्योग्राफी का लॉजिक नज़र आता है। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स सी द नेक्स्ट stanzas. More sea than land. When the plane rises still higher 6 miles up, the earth looks round. From that height, it is clear that the earth has more sea than land. However, one question remains unanswered. It is difficult to understand why people hate, kill, and each other. स्टूडेंट उसके बाद में भूमि से ज़्यादा पानी। स्टूडेंट्स जब कवि का प्लेन या कवि का जेट 6 मील ऊपर से उड़ता है तो उसे पृथ्वी बिल्कुल गोल दिखाई देती है और इसी हाइट से वह समझ जाता है कि यहाँ पानी ज़्यादा है बजाय कि भूमि, यानी भूमि से ज़्यादा पानी है चारों ओर। लेकिन एक क्वेश्चन अभी भी उसके दिमाग में अनआंसर्ड है जिसका उत्तर उसके पास नहीं है और इसके लिए कवि के लिए समझना मुश्किल भी है। वो क्वेश्चन ये है कि कवि के लिए समझना मुश्किल है कि लोग एक दूसरे से घृणा क्यों करते हैं और एक दूसरे को क्यों मार देते हैं। नेक्स्ट, द मिस्ट्री। व्हाट इज द मिस्ट्री नाउ? तो thus it is easy to understand the logic of geography from a height. However, it is very difficult to understand why human hate one another. This remains a mystery. बच्चों, कवि के लिए मिस्ट्री बना हुआ है कि ज्योग्राफी के लॉजिक को डिफरेंट आसमान से डिफरेंट हाइट से भूमि को के बारे में, लोगों के बारे में समझना आसान है, लेकिन कवि के लिए ये समझना मुश्किल है कि लोग एक दूसरे से घृणा क्यों करते हैं। ये आज तक अभी भी कवि के लिए रहस्य बना हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, अब स्टेंजा वाइज अध्ययन करेंगे। Okay, let's start now, students. Geography lesson. Can you imagine what your city would look like if you saw it from 10,000 feet above the ground, neatly planned and perfect in proportion like a geometric design? It would strike as something very different from what it actually is while you are in thick of it. स्टूडेंट्स, क्या आप ये कल्पना कर सकते हैं कि आपका शहर कैसा दिखाई देगा यदि आप ज़मीन से 10,000 फीट की ऊंचाई से देखते हैं? तो बिल्कुल सुनियोजित तरीके से और बिल्कुल पूर्ण ज्योमेट्रिक डिज़ाइन के समानुपात में बना हुआ दिखता है। लेकिन आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, लेकिन ये सब चीज़ें डिफरेंट है एक्चुअली। जैसे जैसे आप पृथ्वी के नज़दीक आते जाते हैं तो आपको सारा का सारा बिल्कुल इसके विपरीत ही दिखाई देता है। स्टूडेंट्स, here is a poet's description of just such a view of city and some questions that come to his mind. स्टूडेंट, ये शहर के एक दृश्य का कवि का एक वर्णन है, डिस्क्रिप्शन है और कुछ क्वेश्चंस का भी वर्णन है इसमें जो कि कवि के दिमाग में आते हैं। ओके सर, let's start now. When the jet sprung into the sky, it was clear why the city had developed the way it had. Seeing it scaled 6 inches to the mile, there seemed an inevitability about what on ground had looked absurd, unplanned, and without style when the jet sprang into the sky. Students, when the jet means is plane, sprang means took off into the sky. Students, जब कवि का जहाज आसमान में उड़ा तो कवि के लिए बिल्कुल स्पष्ट था कि किस तरह से शहर है वो बसे हुए थे, कि वॉट आर द वेज इन विच द सिटी डिवेल्प। वो सारे तौर तरीके जिसमें कि शहर बसे हुए थे ये उसके लिए क्लियर था। लेकिन जब वह 6 मील
उसे 6 मील की दूरी है वो 6 इंच के जितनी लगती थी। और ये बिल्कुल कवि को स्पष्ट दिखाई देता था, इनएविटेबिलिटी का मतलब स्पष्ट दिखना, जिससे बचना सके। और उसने देखा कि जो लोग हैं जिन्होंने अपने घर बसाए थे वो बिना प्लानिंग के बसे हुए थे, उनसे पहले कोई डिज़ाइन तैयार नहीं किया था। अनप्लान्ड एंड विदाउट स्टाइल, बिना स्टाइल के और बिना प्लानिंग के घर बसाए गए थे। ये बात उसे बाद में समझ में आती है जैसे जैसे वह नीचे आता जाता है, और जब उसका जहाज आसमान में उड़ता है तो सारा देखता है। ओके स्टूडेंट, summary of the stanza is that the poet is in plan. He sees everything from the window of his plan. Or it was clear for the poet that the way in which the city had developed. Even though he was every big things seemed and looked very small. It was unavoidable to see from there. It means he could see everything. Or he come to know that the cities or the villages have been developed without having any planning, without having any style. He notes everything when his jet sprang into the sky. Let's know the second stanzas. When the jet is 10,000 feet, it was clear why the country had cities where the rivers ran, where the valleys were populated. The logic of geography, the land and water attracted man, was clearly delineated. Delineated means shown दिखता था. When the jet reached 10,000 feet. Students, this stanza describes what he sees from 10,000 about 10,000 feet above from the ground. So his jet was on 10,000 feet above the ground. It was clear him why the country had cities. He come to know that why the valleys were populated or why the countries had cities, because there were availability of water and land, because land and water attract every man. Land is the place on which he grow crops, or then he takes his crops for selling. देखिए बच्चों, 10,000 फीट की ऊंचाई पर क्या होता है बच्चों, कभी इसमें 10,000 की फीट की ऊंचाई पर है, और वहाँ से उसको ये क्लियर हो गया था कि शहरों में, देश में ये शहर कैसे बसे हुए थे। उसने ये बात नोट कर ली थी कि घाटियों में भी जनसंख्या थी, घाटियों में भी लोग रहते थे। इसका मुख्य कारण ये था कि जोग्राफी का लॉजिक होना था, क्योंकि वहाँ पर्याप्त रूप से पानी की व्यवस्था थी और पर्याप्त रूप से रहने के लिए भूमि की व्यवस्था थी। जहाँ भूमि और पानी होते हैं वहाँ जनसंख्या होती है, वहाँ लोग निवास करते हैं, क्योंकि दोनों चीज़ें आकर्षित करती है, दोनों चीज़ें व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। पानी व्यक्ति को पीने के लिए, धोने के लिए, फसल को उपजाने के लिए चाहिए, और उसी के बाद में जब फसल हो जाती है तो फसल को ट्रांसपोर्टिंग के रूप में दूर ले जाते हैं, सेलिंग के लिए भी। इस तरह से ज्योग्राफी का एक लॉजिक था, लैंड एंड वाटर विच अट्रैक्ट द मैन, और वेयर देयर आर अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड एंड वाटर द पीपल लिव देयर। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, when the jet rose 6 miles high, it was clear the earth was round and that it had more sea than land. बच्चों, जब उसका जहाज 6 मील ऊपर उड़ रहा था तो क्विक को ये बात समझ में आ गई थी। He came to know that the earth was round and he understood or he saw that it had more sea than land. बच्चों, जब उसका जहाज 6 मील की ऊंचाई पर था तो उसने देखा कि पृथ्वी गोल थी और पृथ्वी पर भूमि की बजाय पानी बच्चों ज़्यादा था, समुद्र ज़्यादा थे, पानी ज़्यादा था।
Okay, students. Next. But it was difficult to understand that the men on the earth found cause to hate each other, to build wall across the cities, and to kill. From that height, it was not clear why. Students, what was the difficult for him to understand? It was difficult to understand him that the men on the earth and the causes of their quarreling and causes of their hating and causes of building wall across the city and causes of killing one another and each other. From that height, it was not clear to understand for the poet. Students, इस हाइट से कवि को समझना ये मुश्किल था कि जो व्यक्ति पृथ्वी पर रहते हैं वो एक दूसरे से घृणा करने का कारण क्या है उनका, और वो घृणा क्यों करते हैं, वे क्यों शहरों के चारों ओर दीवारें बनाते हैं, क्यों बॉर्डर बना लेते हैं और क्यों एक दूसरे को मार देते हैं, ये कवि के लिए समझना मुश्किल था बच्चों। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ टू हेट ईच अदर, टू बिल्ड वॉल, यहाँ बच्चों वॉल एक इमेज के रूप में पेश किया है कवि ने। इमेज एक लिटरेरी डिवाइस है इंग्लिश में, और यहाँ वॉल का अर्थ है बाउंड्रीज विच पीपल मेक, और यहाँ सिटीज़ का अर्थ है बच्चों कंट्रीज़। तो ये यहाँ पोइट इमेजेस यूज़ करता है। और इससे पहले भी मैं तो आपको थोड़ा ऊपर ले चलता हूँ ताकि आपको लिटरेरी डिवाइस बता सकूँ। ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं। स्टूडेंट देखिए, स्प्रैंग इनटू द स्काई, स्प्रैंग इनटू द स्काई, इट द पोएट यूजेज ए फिगर ऑफ स्पीच इन दिस लाइन, और द फिगर ऑफ स्पीच ही यूजेज इन दिस लाइन इज एलिटेशन, और एलिटेशन इज रिपीटेशन ऑफ द कॉन्सोनेंट साउंड। यहाँ देखिए स्टूडेंट, सह के साउंड का रिपीटेशन आ रहा है, जैसे स्प्रैंग और इसी तरह से स्काई हम देख रहे हैं। तो यहाँ कवि है वो बहुत ही सुंदर एलिटेशन का यूज़ करता है। इसी तरह से हम और आगे देखते हैं लाइन वाइज। इट वॉज क्लियर वाई द सिटी, आप आगे और देखें तो यहाँ देखिए आप स्केल्ड और सिक्स, यहाँ देखिए सह की साउंड का उच्चारण हो रहा है, स्केल्ड और सिक्स। तो हियर द पोइट यूजेज फाइन एलिट्रेशन। और आगे देखें तो इसी तरह से मैंने आपको बताया था स्प्रैंग इनटू द स्काई, ये फिर रिपीट हो रहा है, और यहाँ भी कवि एलिट्रेशन का यूज़ करता है, अनुप्रास अलंकार का यूज़ कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से स्टूडेंट्स, सीइंग इट स्केल्ड 6 इंच, यहाँ देख रहे हैं हम कि स की साउंड है सीइंग में, स्केल्ड में स साउंड है और 6 में स साउंड है। तो यहाँ भी कवि फाइन एलिट्रेशन का यूज़ करता है, बहुत ही सुंदर यूज़ कर रहा है। फिर नीचे और देखें तो अंडरलाइन में आप देख रहे हैं कि वाई द वैलीज, तो यहाँ वाई में वह साउंड और वैली में भी वह साउंड है स्टूडेंट्स। यहाँ भी कवि सुंदर एलिट्रेशन यानी अनुप्रास अलंकार का यूज़ करता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स लेट्स सी सम क्वेश्चन एंड आंसर और न्यू वर्ड्स इनएविटेबल दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिससे बच नहीं सके, जिसको करना जरूरी हो। इसी तरह से स्टूडेंट्स, हैब्सर्ड विदाउट प्लान और ऑर्डर, बिना योजना और बिना क्रम के कोई चीज़ तैयार करना। इसी तरह से डेलिनिएटेड का अर्थ सोनिया ने दिखाया। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड 3 और 4 फ्रेज इन स्टेंजा 1 and 2 विच अकर इन जोग्राफी लेसन्स। फाइंड 3 और 4 फ्रेजेस, आपको कोई 3 या 4 फ्रेजेस बतानी है जो जोग्राफी के लेसन से संबंधित हो। तो आप स्टूडेंट पोएम की आप लाइन देखेंगे तो सीइंग इट स्केल्ड 6 इंच टू माइल, जिसमें मैंने आपको अनुप्रास अलंकार बताया था, वो इसका आंसर है। इसी तरह से रिवर रैन, तो रिवर रैन में अनुप्रास अलंकार भी है और इसके अलावा जोग्राफी के लेसन से भी संबंधित है। तो रिवर रैन एंड वाई द वैलीज वर पॉपुलेटेड, ये लाइन भी इसका आंसर है। और इसी तरह से लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन, ये लाइन भी जोग्राफी से संबंधित है, तो इसका आंसर है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2, सीन फ्रॉम द विंडो ऑफ एन एरोप्लेन द सिटीज अपीयर्स। स्टूडेंट विंडो की खिड़की से देखने से सिटी कैसा दिखता है, तो आप सेकंड आंसर देखिए, एज नीट एज मैप, बिल्कुल जैसा कि मैप में है वैसा ही दिखता है।
बाकी फर्स्ट थर्ड रॉन्ग है। इसी तरह से स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर एग्जाम्पल ऑफ द लॉजिक ऑफ जोग्राफी। जोग्राफी के लॉजिक के कौन कौन से एग्जाम्पल्स है। तो इसमें आप देखें तो जोग्राफी के जो लॉजिक है, तो आप देर आर सिटीज़ वेयर देर आर रिवर्स। इसमें सेकंड दिया हुआ, सिटीज़ अपीयर एज दे आर नॉट फ्रॉम 6 miles above द ग्राउंड। ओके स्टूडेंट, तो इसमें फर्स्ट में हमने देखा कि देर आर सिटीज़ वेयर देर आर रिवर्स, ये जोग्राफी से संबंधित है, जोग्राफी का ये एक लॉजिक है। और फिर हम देखें तो सेकंड सिटीज़ अपीयर, ये जोग्राफी का लॉजिक नहीं है। इसी तरह से आप थर्ड में देखें तो इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड वाई वैलीज आर पॉपुलेटेड, ये जोग्राफी का लॉजिक है स्टूडेंट्स। और फिर इट इज़ डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड वाई ह्यूमन, ये भी नहीं स्टूडेंट्स जोग्राफी का लॉजिक। फिर देखें तो फिफ्थ, द अर्थ इज़ राउंड एंड इट हैज़ मोर सी देन लैंड, ये जोग्राफी का लॉजिक है स्टूडेंट्स। तो इसमें हमने आंसर फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ डिसाइड किया। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर फोर्थ, मेंशन टू थिंग्स दैट आर क्लियर फ्रॉम हाइट, कवि के लिए जो बिल्कुल क्लियर और स्पष्ट हो, और दूसरी में जो कवि के लिए अस्पष्ट और नॉट क्लियर फ्रॉम द हाइट। तो इट वॉज क्लियर वाई द सिटी हैड डिवेल्प्ड और वाई इट हैड, ये उसको क्लियर था कि दे हैड बीन मेड विदाउट प्लानिंग और विदाउट एनी स्टाइल। और सेकंड उसके लिए था कि इट वॉज क्लियर वाई द कंट्री हैड सिटीज़ बिकॉज देयर वर रिवर्स, because there were availability of water. These things was clear for him. Now unclear things, why men on the earth hate each other, and why do they build walls, and why do they create borders, and why they kill each other. These things are not clear to him. Okay students, now the poem is complete.